I'm going to talk 11 things about fathers today. आज मैं पिताओं के ऊपर 11 विषयों को मैं बताऊंगा. And I won't take much time today. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज. I hope you will go home and have a special time with your fathers. और मुझे आशा है कि आज आप अपने घरों में जाकर अपने पिताओं के साथ एक खास समय को बिताएंगे. Turn your Bible to the book of Hebrews chapter 12. इस समय हम हमारे बाइबल को इब्रानियों अध्याय 12 में हम खोलेंगे. Hebrews chapter 12. इब्रानियों अध्याय 12. I want you to turn your attention with me to the verse number 9. और मैं चाहूँगा कि आप अपनी नज़र को इस समय जमाए रखें वचन नंबर 9 पर. In Hebrews chapter 12 verse number 9, the Bible reads in this manner. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 9 पर बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us and gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के भी और भी अधीन ना रहें जिसमें हम जीवित रहें. So when the word of God here speaks about in verse number 9, in regard to the father on earth, earthly father, it speaks about our fathers correcting us, about correction. जब हम इस वचनों को पढ़े हैं, हमने जाना कि हमारा जो शारीरिक पिता है, यानी कि संसार में जो हमारा पिता है, जब हम कुछ गलत करते हैं वो हमें ताड़ना देते हैं. And the Bible says when fathers correct, we need to reverence them. जब हमारे पिता हमें सुधारते हैं तो हमें उसके आभारी होना चाहिए. So when we speak about reverence means respecting them. इसका मतलब हमें उनका सम्मान करना है. And so it's written to everyone who is a child unto their parents. और ये लिखा गया है जो जितने सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के बच्चे हैं. There's no one here who can say I don't have father. यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेंगे जो कह सकता कि मेरे पास पिता नहीं है. Everyone has a father and everyone has a mother. सभी के पास माँ है और पिता है. And today, because we have this special Father's Day, we are looking at this verse and saying the work of a father. There is so much of a father that does, but the first thing is he will always correct you. और आज जैसे हम पिताओं का दिन को मना रहे हैं और आज हम ये जान रहे हैं कि वो हमेशा तुम्हें सुधारेंगे. Now there is a problem. We often may listen to somebody outside. बहुत से समय हम शायद बहुत से लोगों को सुनेंगे. But when the father corrects, we think, all the time what he does is only corrects me. लेकिन कभी कभी हम क्या बोलते हैं, जब पिता हमें सुधारने के लिए लग जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं वो हमेशा मुझे सुधारते हैं. But God is saying the father's work is to correct. लेकिन पिता वचन में कहता है कि परमेश्वर का काम क्या है, सुधारना. I understand that the mothers have trained the children. और मैं समझता हूँ कि जो माँ है वो अपने बच्चों को सिखाकर भेजी है. I understand that some of them were trained through the week. और मुझे मालूम है हफ्ते भर में उन लोगों को सिखाया गया है. But in the midst of all, the genuine words have come out of the mouth of the children. लेकिन उसमें से भी क्या है, उन लोग के जो सही शब्द हैं उन लोग के मुंह से निकल करके आई है. And something that common thing that came out of the parent of the children was, my father corrects me when I am wrong. और उन लोग के मुंह से ये शब्द निकला कि जब मैं गलत होता हूँ मेरा जो डैडी है वो मुझे सुधारते हैं. My father teaches me good manners. मेरा पिता जो है अच्छे रीतियों को वो सिखाते हैं. And so this is the connection between a father and a child. और ये पिता और बच्चों का एक रिश्ता है. The father corrects. और जो पिता है वो सुधारते हैं. And because the father corrects, क्योंकि पिता जो सुधारते हैं, we are not supposed to become bitter, but rather we need to reverence our father. ऐसे नहीं कि हमें कड़वापन हम अपने पिता के प्रति बन जाए, लेकिन हमें उसके आभारी होना चाहिए. We have to reverence our leaders. हमें हमारे जो लीडर्स है उसको हमें सम्मान आदर करना है. We have to reverence the father figure. और जो हमारा पिता है उसको भी हमें सम्मान देना है. Of course, nobody likes correction today. आज के दिन में किसी को जो सुधार है उसको पसंद नहीं है. Because when we correct, we will say, it's like a Hitler. क्योंकि जब हम सुधारने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि हम हिटलर हैं. But always remember, God's word says the father's work is to correct the children. लेकिन आप याद रखना कि वचन में लिखा कि जो पिता का काम है वो अपने बच्चों को सुधारना. And the children's work is to reverence their father. और बच्चों का काम क्या है, अपने पिताओं के प्रति आभारी होना. You see, the Bible says that holy and reverence is his name.
और लिखा है कि पवित्र और महिमा का जो नाम पिता का है, God's name is reverend, और परमेश्वर का जो नाम है वो सबसे उत्तम है, which means God is the highly respected person. इसका मतलब परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर जिसके हम आदर करते हैं। And so on the earth the Father is a reverend. और संसार में जो हमारा पिता है वो उसको हमें सम्मान देना है। And under the sky, under the earth, under the sun, the Father ought to be highly respected and reverenced. और इस धरती के तले हमें क्या करना है, अपने पिताओं को हमें उत्तम जगहों में हमें उसको आदर देना है। And then we have spiritual fathers, उसके बाद हमारा आत्मिक पिता है, the ones who lead us to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. और जो हमें यीशु मसीह की उस उद्धार के ज्ञान में हमें अगुवाई करते हैं। The one who teaches and preaches the word of God. और जो हमें प्रचार करते हैं, जो हमें सिखाते हैं। And we need to highly reverence them. और हमें उसको भी क्या करना है, हमें उत्तम तरीके से हमें सम्मान को देना है। In fact, the Bible says that they deserve a double portion of, or they deserve double rewards or double respects in the word of God. और लिखा है कि उन लोग जो है अधिक से अधिक, ज्यादातर उन लोग मात्रा में उन लोग को सम्मानित किया जाना चाहिए। Well, let me give you 11 points here based on this verse today. और इस वचन के आधार पर मैं आपको 11 विषय को दूंगा। And I want to ask you to turn your pages here and there in the Bible today. और मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है अपनी बाइबल को यहाँ से खोलें आज। So just verse number 9 we are going to look at. तो आज हम केवल 12 अध्याय वचन 9 को हम आज देख रहे हैं इस समय। The first thing that we look into this verse, we see that earthly fathers are representatives of heavenly fathers on earth. और जो शारीरिक पिता इस संसार के हैं वो क्या स्वर्गीय पिता को वो प्रस्तुत करता है। Now this is the responsibility of a father. और एक पिता का कर्तव्य है। Now sometimes the father may fail in these things. शायद कभी-कभार जो पिता है इन सारे चीजों में वो करने में नाकाम हो। Because they may not know the Lord Jesus Christ. क्योंकि शायद उन लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। Because they are not saved or redeemed. क्योंकि उन लोग छुटकारा नहीं पाए हैं अभी तक। But let this not allow the bitterness to grip into your heart. लेकिन इससे ऐसा ना हो कि हमारे हृदय में वो कड़वापन पैदा हो जाए। But rather pray for your fathers. लेकिन हमें क्या करना है, अपने पिताओं के लिए प्रार्थना करना है। Pray that they will able to understand the heavenly Father. पिता हमें प्रार्थना करना है ताकि हमारे जो पिताएं हैं वो ताकि वो स्वर्गीय पिता को जान सके। But if you know Christ and you strive to become a better child. लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं और आप उसमें आप लगे रहते हैं तो आप ताकि अच्छा संतान बन सके। And many times when the father does not know Christ, they can become bitter and harsh towards the children. और बहुत से जो पिताएं जो यीशु को नहीं जानते शायद अपने बच्चों के प्रति उन लोग बहुत ही कड़वापन और बहुत ही कठिन होंगे उन लोग। But if you are a child and you have a father and your father is not saved and you are saved, you better pray for them and ask the Lord to do a mighty work in their life. अगर आप अपने पिता के संतान हैं लेकिन आपने उद्धार पाया है लेकिन आपका पिता उद्धार नहीं पाया तो आपको अपने पिता के लिए प्रार्थना करना है उद्धार के लिए। But if you are a father today seated here, I want you to understand who you are. अगर आज आप यहाँ पर एक पिता बनकर यहाँ पर बैठे हुए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप आज कौन हैं। Remember, you have a greater responsibility on earth. आपको समझना है इस धरती में आपको एक बहुत ही बड़ी कर्तव्य है। You can change the world by your impact upon your children. आप इस संसार में अपने बच्चों को अपने प्रभावित तरीके से आप बदल सकते हैं। Or you can destroy your children and thereby destroy the world. और या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को नष्ट भी कर सकते हैं। Because you are a representative. क्योंकि आप आप अपने बच्चों को प्रस्तुत करते हैं। There are two fathers that you represent. आप ऐसे दो पिता हैं जो आप प्रस्तुत करते हैं। You see, in the Bible, when Jesus came, he looked at the Pharisees and says, "You are like your father, the liar." और जब यीशु मसीह धरती पे थे फरीसियों को देखकर कहते कि तुम अपने पिता के समान हो, तुम झूठे हो। And so the Lord Jesus was telling to the Pharisees, "You're like your father Lucifer." और यीशु मसीह फरीसी से कहता है कि तुम अपने पिता जो लूसीफर है उसके समान हैं। And that's why we see two kind of fathers on earth. इसलिए हम इस धरती पर दो प्रकार के पिता को हम देखते हैं। One who are very evil on earth because they follow Lucifer. और एक ऐसा बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है क्योंकि उन लोग लूसीफर को अनुसरण करते हैं। Or the other father is the heavenly Father. और दूसरा पिता स्वर्गीय पिता है। And that's why some fathers are so wonderful because they know Christ. इसलिए बहुत सारे पिता बहुत सारे अच्छे हैं क्योंकि उन लोग यीशु मसीह को जानते हैं। And my prayer is
not one of the father in this room should ever represent Lucifer in your home. और आज मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपने घरों में कोई भी जितने सारे पिता हैं ताकि अपने घरों में अपने बच्चों के प्रति उन लोग ताकि लूसीफर को जो है उन लोग प्रस्तुत ना करें. In your deeds, in your words, in your action, you should not represent Lucifer. आपके कामों में, आपके क्रिया में, आपके बोलने में ताकि आप जो है लूसीफर को प्रस्तुत ना करें. You should represent the heavenly Father, our Jehovah God. हमारा यहोवा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उसको आपको प्रस्तुत करना अपने बच्चों के सम्मुख. Our everlasting Father, the Lord Jesus Christ. हमारा अनंत काल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. And you have a greater responsibility. God is saying you are like a mirror to your children. आपके पास एक बहुत ही कर्तव्य है कि आप जो है अपने बच्चों के प्रति आप एक आईने के समान हैं. Which means you must purpose in your heart intentionally to represent the heavenly Father on earth. इसका मतलब कि हृदय में वो इच्छाएं जागना चाहिए, उद्देश्य जनता कि आप जो है स्वर्गीय पिता को अपने बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके. Because that is exactly what God wants you to be. क्योंकि आज जो है परमेश्वर आपको चाहते हैं ताकि आप वैसे ही बने. Becoming a father is the beautiful and the most precious thing on earth. पिता बनना इस संसार में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती चीज है. Every man should strive to find a godly woman and marry and become a father. हर एक जो पुरुष है उसको एक ईश्वरीय एक स्त्री को ढूंढना है ताकि वो जो है एक अच्छा पिता भविष्य में बन सके. That is God's desire from the beginning, that man should not be alone. और यही परमेश्वर की इच्छा है शुरुआत से ही, आदि से, कि मनुष्य को जो है अकेला रहना उचित नहीं है. And if God wanted man to be alone, he would have kept woman out of this world. अगर परमेश्वर चाहता कि मनुष्य या फिर पुरुष जो अकेला रहे तो परमेश्वर स्त्रियों को अलग कर देते. But it is God's duty that all men should be married. लेकिन ये परमेश्वर का काम है कि हर एक जो पुरुष है ताकि वो शादीशुदा बने. And replenish and be fruitful and multiply in this world. ताकि इस संसार में वो फलवान बने और इस संसार को परिपूर्ण करे. And so God made beautiful ladies that you may find and marry them and make babies on earth. ताकि आप जो है स्त्रियों को ढूंढकर उसको शादी कर कर बच्चे बनाकर ताकि आप इस संसार में जी सके. Because the father, that's why he's the heavenly Father. Otherwise he would be a heavenly bachelor. इसलिए वो स्वर्गीय पिता है और वो जो है बैचलर नहीं है. वो Jesus is not Jesus has a bride. और यीशु मसीह के पास दुल्हन है. The church is the bride of Christ. और जो कलीसिया है वो यीशु का दुल्हन है. He is not a bachelor. और वो एक बैचलर व्यक्ति नहीं है. And in the heavenly Father, the Bible says Israel is the bride, is the woman, is the wife of the heavenly Father. और जो ईश्वर परमेश्वर है, जो इज़राइल है, वो यीशु मसीह का स्त्री है, परमेश्वर का स्त्री है. No. इज़राइल जो है यहोवा का स्त्री है. और इज़राइल जो देश है वो क्या है? यहोवा परमेश्वर का स्त्री है. And whoever puts the faith in the Lord Jesus Christ are given the power to become the sons of God. और जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं उसको सामर्थ दिया जाता है परमेश्वर का संतान बनने के लिए. And that's why he is the father. और इसीलिए वो पिता है. He has children. उसके पास बच्चे हैं. He expects that we also follow his footsteps. वो आशा रखते हैं ताकि हम भी परमेश्वर के कदमों को पालन करें. So you and I ought to be a representative of the heavenly Father on earth. इसीलिए स्वर्गीय पिता का हमें एक प्रस्तुत करना इस धरती में हमें उचित है. So how is the heavenly Father? कैसे स्वर्गीय पिता? And that is how the fathers on earth ought to be. उसी प्रकार से इस धरती में जितने सारे पिता हैं उसको बनना है. Because that is the greatest responsibility. क्योंकि वो एक महान एक कर्तव्य है. Now I can go on and on of representing the heavenly Father. और मैं यहाँ पर आपको लगातार बता सकता हूँ कैसे हमें प्रस्तुत करना है स्वर्गीय पिता को. But that will keep you here for a long time. लेकिन उससे आप क्या होंगे, यहाँ पर आप लंबे समय तक रह जाएंगे. And the second thing that we find is fathers are hard workers. और दूसरा जो चीज है, जो पिता है वो कठिन काम करने वाले लोग हैं. Fathers are hard workers. और पिता जो है कठिन काम करने वाले हैं. And sometimes we take them for granted. और कभी कभार हम इस सारे विषयों को सोचकर हम साधारण में लेते हैं. We find negative things about fathers most often. और कभी कभार हम पिताओं को लेकर के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजों को हम लेकर के हम आ जाते हैं. And it is so easy for today's children to on the face directly speak to their fathers about their negative things. और आजकल के समय में जो है बच्चों का बहुत ही एक
आसान होगा कि अपने पिताओं के चेहरे पर उन लोग ताकि नेगेटिव चीजों को लेकर के बोल सके। And as much as children can speak on their father's face the negative thing, I think the children ought to speak on the father's face about the good things also. और जो चीजें जितने सारे बच्चे हैं जो चीजें को उन लोग जो गलत चीजें हैं उन लोग अपने पिताओं के सामने बोलते हैं, मुझे लगता है कि उन लोग अच्छी चीजों को भी अपने पिताओं के सामने बोलना Well, चाहिए। today's message is not to tell the father what they ought to be. और आज का संदेश ये नहीं कि जो बच्चे हैं अपने बाप को बोले कि तुम्हें कैसा बनना है। Today's message is for everybody to know that how we should treat our fathers. लेकिन आज का संदेश यही है कि हम अपने पिताओं को कैसे हम उन लोग से हम व्यवहार करें। Fathers are hard workers. जो पिता हैं वो लोग कठिन काम करने वाले And लोग we हैं। should appreciate our fathers. और हमारे पिताओं को हमें उन लोग को शुक्रगुजार करना We है। should tell them thank you for working hard. और हमें बोलना है कि आप कठिन काम करते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। And it is the duty of every children, every child, no matter how old you are, you should appreciate your father for working hard. चाहे आपका उम्र जितना भी हो आपको अपने पिता को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आपके जो पिता है वो बहुत ही मेहनत करते हैं। Third, fathers are providers. और तीसरा जो है पिता जो है उन लोग मुहैया करने वाले लोग हैं, यानी कि चीजों को उन लोग देते हैं। And they work hard to provide our needs. उन लोग कठिन कामों को करते हैं ताकि वो हमारे जरूरतों को पूरा करें। They provide food for us every day. और हर एक दिन उन लोग हमारे लिए भोजन को उपलब्ध करते हैं। They provide our school fees. और हमारे स्कूल की जो फी है उसको भी उन लोग जरूरत को पूरा करते हैं। They provide a roof over our home. और हमारे घर में छत को दिलाते हैं। They provide a warm blankets when it is cold. और जब ठंडे होते हैं उस समय हमें कंबलों को वो प्रोवाइड करते हैं। They provide food so we can be healthy. और वो हमें खानाओं को देते ताकि हम स्वस्थ बने। Many things that we need to appreciate our fathers for. और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमें अपने पिताओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। We need to thank God for our fathers. और हमें हमारे पिताओं के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। Our fathers are protectors. हमारा पिता हमारा रक्षक है। They protect us. वो हमें रक्षा करते Now हैं। the fathers may not always show their emotions outwardly, और शायद पिता जितने सारे हैं वो बाहरी तरीके से अपने इमोशन को शायद नहीं दिखाएंगे, but they are very protectors. लेकिन लोग हमारा रक्षक है। Well, anyone can hurt them, but they will not tolerate when their wives and their children are hurt. जब उन लोग को कोई नुकसान पहुंचेंगे शायद उन लोग सहन करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अपने बीवियों को जब कोई नुकसान पहुंचेंगे उन लोग सहन नहीं करेंगे। Especially when the child is hurt, it's not just the mother who feels the pain, but the father feels the pain more also. जब बच्चों को कुछ दर्द होता है ऐसा नहीं कि केवल माँओं को ही दर्द होता है, लेकिन जो पिता है उसको भी बहुत दर्द होता है। And they may not show it with their voices sometime, but there is great pain in their hearts. शायद उन लोग शब्दों से बयान नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग के हृदय में अंदर ही अंदर बहुत ही दर्द है। And sometimes the fathers protect them by correcting them. और कभी कभार जो पिता है अपने बच्चों को सुधारने के द्वारा उन लोग को संभालते हैं। The fathers protect their children by putting boundaries of where to go, where not to go. और पिता जो है अपने बच्चों के चारों ओर सीमा को लगाते हैं कि तुम्हें कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है। We thank God for our fathers are protectors. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो पिता है वो रक्षक है हमारे। Many a time children misunderstand their father when the father says don't go there, don't do this, don't be with those people. We think our father is too strict with us. बहुत सारे समय जो पिता लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, बच्चे लोग गलतफहमी हो जाते हैं। No, they really understand why that place and those kind of people are not needed and not good for us. क्योंकि उन लोग समझते हैं कि वो लोग क्यों अच्छे नहीं है, वहां पे जाना क्यों अच्छा नहीं, उन लोग समझते हैं सही तरीके The से। fathers have seen life more decades than you. क्योंकि बच्चों से अधिक जो पिता है उन लोग ने जीवन को देखा है, जीवन को जिया है। And out of experience they will tell you what is right and what is wrong. और वही अनुभव को लेकर के उन लोग कह सकते हैं कि कौन सा सही है और क्या गलत है। Now back of my mind, I am aware of some worldly fathers that don't fear God. They just live worldly sinful life. और मुझे बहुत से ऐसे पिताओं को लेकर मुझे समझ है कि उन लोग कैसे जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन को जीते हैं। They can be very evil to their wives and to their उन children. लोग अपने वाइफ के स्त्री के प्रति और बच्चों के प्रति शायद उन लोग बहुत ही दुष्ट होंगे। I want you to know this morning, I'm not speaking to the world outside. I'm speaking to all these wonderful people and fathers seated here right मैं now. आज जो है बाहर के लोगों के ऊपर मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितने सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए आपके प्रति मैं बोल रहा हूँ इस समय। So remember, your father is a representative of the heavenly Father on earth. तो आपको समझना है जितने सारे पिता है वो इस संसार में जो स्वर्गीय पिता है उसका वो प्रस्तुत करने वाला एक पिता है। So which means fathers, you need to do much more now, not that you know who you represent. क्योंकि आप
अभी जो आपका कर्तव्य अभी ज्यादा अधिक हो गया, क्योंकि आप अभी समझते हैं कि आप जो है कौन है। And we understand, fathers, you are a hard worker. और हम समझते हैं कि आप कठिन काम करने वाले व्यक्ति हैं। We understand why you are working और hard. हम समझते हैं कि क्यों आप कठिन कामों को करते हैं। We know that you are doing it for your family. हम जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। We understand fathers are providers. और हम समझते हैं जो पिता है उन लोग जरूरत को पूरा करने वाले You हैं। see, sometimes the father and mother can go empty stomach, but they never want their children to be empty कभी stomach. कभार उन लोग जो है माँ बाप जो है खाली पेट रह सकते हैं, लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं उन लोग खाली पेट रहे। Fathers are protectors. पिता जो है उन लोग रक्षक हैं। They protect them from danger, protect the children from dangers. और बहुत सारे ऐसे डेंजर चीजों से बच्चों को वो लोग बचाते हैं, Protect संभालते हैं। their children from bad companies. और गलत संगति से उन लोग अपने बच्चों को बचाते हैं। Then I want you to see that the fathers are spiritual leaders. और हम बताना चाहूँ कि जो पिता है उन लोग एक आत्मिक लीडर है। And so the Bible says because of that we need to reverence them. उसके लिए ही हमें जो है उसको एक आदर को देना है, And सम्मान को देना है। that's why we say reverend father, इसलिए हम रेवरेंड पिता हम कहते हैं, a reverend pastor, या फिर रेवरेंड पास्टर हम कहते because हैं, they are respected people. क्योंकि उन लोग एक सम्मानित व्यक्ति है। They watch for our soul, they watch for our body, उन लोग हमारे आदमी के लिए देखते हैं, हमारे शारीरिक के लिए उन लोग देखते हैं। and they are worthy of double honor. और उन लोग और ज्यादा अधिक और सम्मान का उन लोग क्या है, उन लोग वर्दी है। And fathers, you are a spiritual leader, remember that. आपको याद रखना है जितने सारे पिता हैं आप एक आत्मिक पिता हैं। And because you are a spiritual leader, you ought to set a godly example in your home before your family. क्योंकि आप एक आत्मिक लीडर हैं, इसलिए आपको अपने घर में लोगों के समूह आपको एक अच्छा उदाहरण को बिठा के रखना है। You should not be watching your wife and children praying, but you should be the one who is leading the prayer. ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को अपने बीवियों को प्रार्थना करते हुए देखें, लेकिन आप ऐसा होना चाहिए कि आप उन लोगों को अगुवाई करें। You want your son to be like you by your examples. आप अपने उदाहरण के द्वारा आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी आपके जैसे बने। You should strive even when it is difficult. You need to strive purposefully and intentionally to be a spiritual leader in your home. कठिनदायक समय में भी आपको क्या करना है, उसको आपको कोशिश करना है ताकि आप अपने घर में एक अच्छा आत्मिक लीडर बन सके। And so maybe spending time by reading couple of verses with your children. शायद अपने बच्चों के साथ समय को बिताते हुए आप कुछ वचनों को पढ़ सकते हैं। Maybe praying with your children. शायद अपने बच्चों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। But if you do that along with your wife, your children will have greater respect for you. अगर आप ऐसा लगातार करेंगे, आप जो है अपने बीवी या फिर अपने बच्चों से आपको सम्मान मिलेंगे। And God is speaking to you and saying you are a spiritual leader in your home. और आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपने घर में एक आत्मिक लीडर हैं। Fathers are our life coach. और जो पिता है हमारा एक जीवन का एक कोच है, सिखाने वाले हैं। You see, when you put your children in the football sports or any sports, there is a coach. There is someone who coaches your children. और जब अपने बच्चों को फुटबॉल के लिए आप डालते हैं, वो ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे आप उन लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। One of the child says, "I love my father because he is our driver on Sunday for church." और इसमें से एक बच्चा ने कहा कि मैं अपने डैडी को पसंद करता हूँ क्योंकि वो रविवार को हमें ड्राइव करके लेकर के आते हैं चर्च। Remember, those are very special words that's coming out of the mouth of the children. और बहुत ही एक खूबसूरत शब्द है जो बच्चों के मुंह से निकल करके आए हैं। My father takes me to church. मेरा जो डैडी है वो मुझे चर्च को ले जाता है। These are some powerful impact that has been done in the children's life. और वो जो है प्रभावित हुए हैं उन लोग अपने पिताओं को लेकर के, जो बच्चों के जीवन में हुआ है। You are coaching your children to be in the house of God. आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं उदाहरण को देकर के कि उन लोग को प्रभु के भवन में रहना है। You are coaching your child to know that giving God the first priority is the right thing. और आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं सबसे पहला अधिक उत्तम स्थान देना प्रभु को जो है वो बहुत ही उचित है। And most of the children says my daddy gives me everything that I want. और बहुत सारे समय बच्चे लोग कहेंगे कि मैं जो भी चाहता हूँ मेरे डैडी मुझे दे देते हैं। That is an amazing thing that a child has such a comfort upon the father. और एक बहुत ही अद्भुत चीज है जो बच्चों को एक आराम मिलते हैं, आशा मिलती है कि उन लोग को सब कुछ मिल जाता है। That I can ask my father and my father will give me. कि मैं अपने पिता से मांग सकता हूँ, मेरा पिता देता है।
And so you are a life coach, which means somebody said, my father teaches me good manners. और इस बच्चों में से एक ने कहा कि मुझे जो है मेरा पिता अच्छे चीजों को सिखाते Now, हैं, those are genuine truths. और वो जेन्युइन एक सच्चाई है। Now, fathers, when your child speaks like this, it means you have a double responsibility now. You can't put yourself down, but raise yourself above. अभी इस परिस्थिति को देखते हुए जो जितने सारे पिता हैं, आप अपने आप को नीचे नहीं रख सकते। अभी आपको क्या करना है, और भी ऊपर उठना है, और भी कर्तव्यों को पालन करना है। Fathers are life coach. और पिता जो है एक कोच है उन लोग सिखाने वाले। Every day you ought to be knowing that this is a greater responsibility that you have. हर एक दिन आपको जानने की उचित है कि आपके पास अभी कितने सारे कर्तव्य हैं। Teaching them good manners. उन लोगों को सही चीजों को सिखाना। Teaching them that serving the Lord is the most important thing in life. आपको यह सिखाना है कि प्रभु की सेवा करना बहुत ही जरूरी चीज है। Teaching them that putting God first in life is the right thing. उन लोगों को सिखाने की आवश्यकता है कि प्रभु को पहला स्थान देना बहुत ही उचित है। And fathers, don't be a worldly coach, but a life coach for God's glory. जितने सारे पिता ऐसा ना हो कि आप संसारिक एक शिक्षक बने, लेकिन एक अच्छा ईश्वरीय शिक्षक बने। Then fathers are correctors and discipliners. और जो पिताएं हैं उन लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं और उन लोग को सुधारते भी हैं। And so spanking with a rod is the right thing to do. और लाठी लेकर के मारना वो सही चीज है। Not for any other purpose or for joy, but for correction. ऐसा नहीं कि सब कारण के लिए, लेकिन सुधार के लिए आपको बच्चों को मारना If है। you unnecessarily spank your child, that there is no power in your spanking. अगर बिना वजह ही आप अपने बच्चों को मारते हैं तो वहां पे कोई शक्ति नहीं है। Your child should know why you are spanking. आपके बच्चे को जानने की आवश्यकता होगी कि आप क्यों उन लोग को मार रहे हैं। Your child should know that you are doing it because you want that child to be corrected. आपके बच्चे को जानने की आवश्यकता होना चाहिए कि आप क्यों मार रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को सुधार की जरूरत है। There are times that I will spank my child in front of them to show them it hurts me also. और मैं कभी कभार अपने बच्चों के सामने मारता हूं कि ये दिखाने के लिए कि ये जो है जब मारते हैं वो दर्द भी होता है। I want them to know that it pains me too. और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मुझे भी दर्द होता है। And it is not my joy to spank my children. और ये मेरा आनंद की बात नहीं कि मैं अपने बच्चों को मारूं, But I am disciplining them. लेकिन मैं लोगों को डिसिप्लिन कर रहा हूँ। I want them to follow the right footstep in life. मैं चाहता हूँ ताकि उन लोग जीवन में सही कदमों को उन लोग रखें। And fathers, you ought to be a good, godly, disciplinary man. और आपको एक जो है एक अच्छा पालक बनना है, एक अच्छा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति बनना है। If you want your child to walk in discipline, then you have to set a godly example in that manner. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लोग भी डिसिप्लिन में रहे तो आपको भी एक उदाहरण को रखना है आपके बच्चों के सम्मुख। And fathers, you are a confident builder for your children. और जितने सारे पिता हैं आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्फिडेंस को आप अपने बच्चों के जीवन में लाते हैं। Which means you got to be pumping your children with confidence every day. इसका मतलब जो है आपको बच्चों को हर एक दिन सिखाना कि किस प्रकार से हमें कॉन्फिडेंस को लाना है अपने जीवनों में। If your child comes up and shows you some even a ugly drawing, don't tell them, that is bad, but rather pump confidence in them. अगर आपके बच्चे लोग कुछ ड्राइंग करते हैं और आपके सामने ला करके दिखाते हैं, ऐसा ना बोलो कि ये बहुत ही खराब है, लेकिन उसको उत्साह करो। Encourage them and tell them how wonderful is their efforts in drawing, making those pictures. और उत्साह करते हुए ये बोलो कि कितना खूबसूरत है, कितना तुमने मेहनत किया, उसके ऊपर तारीफ करो। Even when they speak, pump confidence in them. और जब उन लोग बोलते हैं उस समय भी आप उन लोग के बोलते समय आप कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं। Or when they sing, pump confidence in them. और जब उन लोग गाते हैं उस समय भी आप कॉन्फिडेंस को लाते हैं, उन लोग ला सकते हैं। Because out there in the world, you want them to face the world with confidence. क्योंकि संसार में जब उन लोग जाएंगे कि उन लोग को उस समय कॉन्फिडेंस की जरूरत होंगे। You don't want your child to be shy tomorrow. क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग कल को लोगों के सामने लज्जित हो। But your child can overcome every shyness if you pump confidence today and keep telling your child that he is really good in what he is doing. अगर आज आप अपने बच्चों के जीवन में कॉन्फिडेंस को लाते हैं तो कल को उन लोग लज्जित नहीं होंगे, उन लोग कल शर्माएंगे नहीं। If you read the word of God, the Lord is always pumping confidence in us. अगर आप वचनों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है कॉन्फिडेंस को हमेशा से ला के रखते हैं। The Lord God of Israel calling the children of Israel as the apple of my eye. और इस्राएल का जो परमेश्वर है अपने बच्चों
से कहता है कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो, He tells them how precious they are to Him. और कहता कि उन लोग कितना उसके लिए खास है। And we read in the Word of God, we read in the Bible, Jesus says that, in the book of Hebrews, your father and mother may forsake you, but I will never forsake you. इब्रानियों में लिखा है कि तुम्हारे माँ और पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। When such words we hear, we build confidence within us. जब हम इस वचनों को सुनते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, Faith is being built upon us. और विश्वास हमारे अंदर आ जाता है That the Lord will never let me down. कि परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं The Lord त्यागेंगे, will never forsake कि me. परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। Now, fathers, that is exactly what your child wants to see in your life and words. इसीलिए जो पिता है, आप जो आपके बच्चे हैं, वही आपके जीवन में उन लोग देखना चाहते हैं। Remember again, you represent the Father in heaven on earth. आपको समझना, इस धरती में जो है आप स्वर्ग के पिता को प्रस्तुत करते हैं। You should make yourself so available that your children can come with boldness and authority and come to you anytime and say, Father, Daddy, and with authority they can come. और ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे लोग ताकि आपके पास कभी भी आ सके, कभी भी हिम्मत को लेकर, कभी भी उस साहस को लेकर, ताकि आपके बच्चे लोग आपके पास आ सके। Now that is what the Bible says, that we should come before the throne of grace with boldness and authority, calling Him Abba Father. इसलिए बाइबल में बताते हैं कि हमें जो है परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हमारे पिता को आबा फादर के हमें आना चाहिए। And so, my dear brothers, you ought to make yourself available so your children can come to you anytime, and so don't put fear in their heart, but rather pump confidence in their life. इसलिए जितने सारे पिता हैं, आपको अपने आप को अवेलेबल बनाना है ताकि आपके बच्चे लोग, ताकि कौन से भी समय में आपके पास आ सके, और आप उन लोग को नीचे ना गिराइए, उन लोग को डर पैदा ना करें, लेकिन उन लोग ताकि आपके पास आ सके। When they are wrong, can they come and tell you, Daddy, I messed it up, please help me out? ताकि उन लोग जब कुछ गलती करें, ताकि उन लोग आपके पास आ सके और मदद के लिए ताकि मांग सके। Or are they scared and they will not tell you and let it rot in their life? और या फिर उन लोग डरे हुए रहते हैं और उन लोग चुपचाप से रहेंगे, आपको बताएंगे नहीं, उन लोग का जीवन सड़ जाएंगे अंदर अंदर। No, you can build confidence if you'll spend time with them. अगर आप उन लोग के साथ समय बिताएंगे तो आप उन लोग के जीवन में कॉन्फिडेंस को आप पैदा कर सकते You can हैं। spend time in your work. आप अपने कामों में आप समय बिता सकते हैं। You can spend time in your business. आपके जो बिजनेस है उसमें आप समय बिता सकते हैं। You can spend time with your friends. अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। But all these things are a wasted garbage if you're not spending time with your wife and kids. अगर आप अपने बीवी और बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो सब व्यर्थ हैं। Because no one else is going to come in the last day. It will be the way that you live now and the time where you spend now will determine how your children will grow. और ये दर्शाता है, जो आज आप समय को बिता रहे अपने बच्चों के साथ, वो ऐसे ही कल को भी वो दर्शाएंगे आपके बच्चों के प्रति जीवन में। If you lose money, you can make money more later. अगर आज आप पैसे को खो देते हैं तो आप वापस से कल पैसा बना सकते हैं। If you have health issues, the health can get restored again later. अगर आपका स्वास्थ्य आज खराब है तो कल को आपका स्वास्थ्य वापस से अच्छा भी बन सकता है। But if you lose your time, it can never come back again. लेकिन अगर आप समय को खो देंगे, वो समय दोबारा से वापस लौट के नहीं आएंगे। And so don't think about the wasted time of yesterday. जो समय को आपने बर्बाद कर चुका उसके बारे में ना सोचें, but think about how you can start and renew your life today. लेकिन आज आप सोचे कि आज से मैं कैसे उसको वापस से शुरू कर सकूं, And become a better father from today onwards. और आज से आप कैसे बेहतर पिता बन सकते How हैं, you can spend more time with your children. कैसे आप अपने बच्चों के साथ समय ज्यादा बिता How सकते you हैं, can instill God's word in their hearts every day. कैसे आप हर एक दिन वचनों को उन लोग के हृदय में डाल सके, How you can pump confidence in their lives. कैसे आप उन लोग के जीवन में कॉन्फिडेंस को ला सके। Fathers are often misunderstood by children. और जितने सारे पिता हैं, कभी कभार अपने बच्चों से उन लोग गलत फहमी उन लोग आ जाते हैं उन लोग के जीवन में। And in the past, I've seen children mocking their fathers. और कुछ दिनों पहले In the past, not पहले many years back. कुछ साल पहले मैंने देखा कि जो जितने सारे बच्चे अपने पिता को उन लोग मजाक उड़ाते हुए मैंने देखा। I've been in a particular place where I've seen they were speaking bad about their father, making jokes about their father. और मैंने कहीं जगहों में देखा कि जो जितने सारे बच्चे हैं उन लोग अपने पिता के प्रति गलत जोक करते हैं और उन लोग का मजाक उड़ाते हैं। And I'll tell you why I saw these things happen. और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये चीजों को होते हुए देखा। It's because the mothers were responsible for the children making jokes about their fathers. क्योंकि जितने सारे माँ हैं उन लोग ही उसका दोषी है जो बच्चे
बच्चे लोग अपने बाप के प्रति उन लोग मजाक उड़ाते हैं, And the mothers would speak bad about their husbands in front of their children. क्योंकि जो जितने सारे बीवी हैं उन लोग अपने पति के ऊपर उन लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं बच्चों के सामने. Or they may speak about their husband and negative things to somebody, their friends or other family members. और शायद से उन लोग अपने जो दोस्तों से उन लोग जो है अपने पति को लेकर के उन लोग गलत बातों को करते हैं. When mothers do that in front of their children, you are ruining your children. जब जितने सारे माँ अपने बच्चों के सामने ये सब गलत कामों को करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को आप नष्ट कर No देंगे. matter what is happening between you and you as a mother, I know I'm going off this, but you as a mother should always build respect in the heart of your children for their father. और एक माँ होने के नाते आपको क्या करना है, अपने बच्चों के प्रति एक जो श्रद्धा है या फिर जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, अपने बच्चों के हृदय में आपको डालना है. If you speak about the father to the children, they will also do the same. अगर आप अपने बच्चों के प्रति वो बात करेंगे तो उन लोग भी आपके प्रति कल को वही करेंगे. They will not grow in respect for their father. उन लोग जो है कल को उन लोग सम्मान में नहीं बढ़ेंगे. They will mock their father in public. उन लोग क्या करेंगे, खुलेआम लोगों के सामने उन लोग अपने जो पिता है उसको उन लोग मजाक No उड़ाएंगे. matter what the father does, how much he works hard, what he does, even in the school, their children may mock their fathers with their friends. चाहे उन लोग के पिता जितने सारे कठिन काम को करे, कितना भी मेहनत करे, उन लोग अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, अपने पिताओं को उन लोग मजाक उड़ाएंगे. And the mother's responsibility is always to instill respect, no matter what it is, instill respect in the heart of their children towards their father. इसलिए माँओं का काम यही होना चाहिए कि जो जितने सारे बच्चे हैं ताकि उन लोग को सिखा सके, ताकि उन लोग अपने पिता के प्रति ताकि श्रद्धा या फिर सम्मान को ताकि दे सके. Because mothers are the greatest influencer of their children, because mothers spend 70% of your life with the children. क्योंकि जो माँ है वो बहुत ही प्रभावशाली एक स्त्री बन सकते हैं, क्योंकि जो माँ है 70% समय को अपने बच्चों के साथ बिताती The है. fathers are always out working or doing things. क्योंकि जितने सारे पिता हैं उन लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से उन लोग बाहर रहते हैं. Mothers spend 70% of their life जितने with their सारे children. माँ हैं उन लोग अपने बच्चों के साथ 70% समय को बिताते हैं. So never allow the children to speak bad about their father. तो कभी आप अनुमति ना देना ताकि बच्चे लोग आपके अपने पिता के विरुद्ध उन लोग बात करें. Never let your mouth open up in front of your children to speak bad about their father. ऐसा ना हो कि उन लोग आपकी मुंह कभी भी ताकि ना खुला के बच्चों के सामने अपने पिता के ऊपर. Sometimes with anger you may say, but your children will go to school and mock their own fathers to their friends. शायद कभी कभार आप गुस्से में बोल सकते हैं, शायद मुंह खोल सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग सुनकर अपने स्कूल में जाकर दोस्तों के साथ शेयर कर And सकते that हैं. will be a bad influence in your children's life. और आप क्या करेंगे, अपने बच्चों के जीवन में गलत प्रभाव को आप डालेंगे. You can blame your father for your husband or father for many things. आप शायद अपने पिता को, अपने हस्बैंड को या फिर पति को आप शायद उसके ऊपर दोष लगा सकते But हैं. with love and kind words you can win your husband for many beautiful things. लेकिन प्यार से और सही शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपने जो हस्बैंड है उसको आप जीत सकते हैं. Don't let your children misunderstand their father. ऐसा ना हो कि आपके बच्चे लोग जो है उन लोग ना समझ हो सके. Children never misunderstand your father. जितने सारे बच्चे हैं आप कभी भी अपने पिता को लेकर के गलत फहमी में ना रहें. Always believe what you said today is something that you should always remember until no matter how old you become. आप जितना भी आपका उम्र हो जाए, आप ये जो शब्द आपने आज कहा है ताकि आप उसको ना कभी भी भूलें. You need to understand the fathers are the best gift for every child on the earth. और आपको समझना है जो पिता है वो सबसे एक महत्वपूर्ण तोहफा है जो हमें दिया गया है संसार में. Remember, fathers are the champion of the family. और आपको समझना है जो पिता है वो घर का एक चैंपियन है. If the father does not walk like a champion, walk like a hero, then the light in the home will be dim. अगर जो पिता है वो एक चैंपियन जैसा काम ना करे, ना चले, तो घर का जो रोशनी है वो क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे. Every mother and every child, every children should make their father realize that he is the most important thing in their life. और जो बच्चे हैं उन लोग ऐसा महसूस करवाना है अपने डैडियों को कि जो पिता है उन लोग घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. Saying thank you daddy is one of the sweetest thing that you can ever do. और जो धन्यवाद मेरा डैडी, उसको आप बोलते हुए आप सबसे एक अच्छा
चीजों को आप अपने डैडी के सामने ला सकते हैं। Praying for your father is the most precious thing that you can ever do. और अपने पिता के लिए प्रार्थना करना सबसे उत्तम चीज है, आप कर सकते हैं अपने पिता के Speaking लिए। highly about your father in public like today is the greatest reward that you can ever give. जैसे आज आपने पिता के बारे में खुलेआम लोगों के बारे में बताया, तो वो आप अपने पिता को दे सकते हैं बोलते हुए। You should always continue doing that. आपको हमेशा ये करते रहना है। No matter how old you are, always appreciate your father. चाहे आपका उम्र जितना भी हो, आप हमेशा अपने पिता को आप हमेशा उसका आभारी करें। Now I do understand there are some who have a bad experience in life. और मैं समझता हूँ कि किसी किसी के जीवन में आज बहुत सारे ऐसे गलत अनुभव हैं। But don't let bitterness grow in your life. लेकिन उससे ऐसा ना हो कि आपके अंदर कड़वापन पैदा हो जाए। And sometimes, and because of that, God gives you spiritual fathers. क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आत्मिक पिताओं को दिया है। God gives you father-in-laws. परमेश्वर ने तुम्हें पिताओं को दिए हैं। God gives you another father. और परमेश्वर ने और दूसरा पिता को दे रखा है। But even if your earthly father fails, always look up to your heavenly Father. He never fails you. अगर शारीरिक पिता जो है अगर करने में सक्षम ना हो, तो हमेशा आपको स्वर्गीय पिता की ओर देखना है, क्योंकि वो हमेशा सब कुछ कर सकता है। Pray for him. उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। Love him. उन्हें आपको प्यार करना है। Sometimes children have tough time to say, Father, Daddy, I love you when they grow older. जब उन लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, शायद उन लोगों को कठिन होंगे बोलने के लिए कि डैडी मैं आपसे प्यार करता हूँ। But those are the most precious time that you should use to tell your father that you love him. लेकिन आपको ऐसा एक कीमती समय को बिताना है कि आप बोल सकते हैं कि डैडी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। And it should never grow old. It should never be out of fashion. और वो तुम्हारे जीवन से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। Saying Daddy I love you is always in fashion. और ये जो बोलना है, जो डैडी मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये हमेशा आपके जीवन में रहना चाहिए। Remember, he is the champion of your family. आपको समझना है, आपको जानना है, वो आपका परिवार का एक चैंपियन है। And then finally, I want you to know, fathers are God's best gift to every child. और अंतिम में मैं बताऊंगा कि जो पिता है वो सबसे उत्तम एक तोहफा है बच्चों के लिए। Never misunderstand that. कभी आप उसका गलतफहमी में ना रहें। Never misuse your father. कभी आपके पिता को लेकर मिसयूज ना करें। Never hurt him. कभी उसको ठेस ना पहुंचाएं। And never make him feel inferior. और कभी ऐसा ना हो कि वो आपको लेकर के वो ऐसे मतलब दुखित हो गए हैं। But father, it is your responsibility also to look unto Jesus and become more like him. लेकिन पिता जितने सारे यहाँ पर, आपका एक कर्तव्य है कि आपको यीशु की और हर एक दिन देखना है और आपको यीशु जैसा बनना है। And when you don't follow Christ, और जब यीशु की अनुसरण नहीं करते हैं, you are following Lucifer. आप लूसीफर का अनुसरण करते हैं। And if you follow Lucifer, अगर आप लूसीफर का अनुसरण करते हैं, you will hurt your child. आप अपने बच्चों को ठेस पहुंचाएंगे। You will hurt your wife. अपने बीवी को ठेस You पहुंचाएंगे। will hurt people around you. और जो लोग आपके चारों ओर उसको ठेस पहुंचाएंगे। Because that's exactly what Lucifer wants you to do. क्योंकि वही चाहते हैं लूसीफर ताकि आप करें। God wants you to follow Christ. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आप यीशु का अनुसरण करें। Because if you follow Christ, क्योंकि अगर आप यीशु का अनुसरण करते you हैं, will understand the importance of spending time with your children. आप उस महत्वपूर्ण समय को आप समझेंगे जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय को बिताएंगे। You will understand the importance of living a holy life in front of your children. और आप उस समय समझेंगे कि आप अपने बच्चों के सामने, बच्चों के सम्मुख कैसे पवित्र जीवन को जीना है। You will understand the importance of living a moral and ethical life in front of your और children. अपने बच्चों के सामने सम्मुख सही जीवन को जीना, उसका महत्व को आप समझेंगे सही तरीके से। Do you want to destroy your children? क्या आप अपने बच्चों को नष्ट करना चाहते हैं? Then follow Lucifer. तो आप लूसीफर का अनुसरण कर सकते I हैं। don't think any father wants to destroy their children. मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप जो है अपने बच्चों को नष्ट करना चाहेंगे। Purposefully they don't want. उद्देश्य जनक उन लोग कभी भी नहीं करेंगे। But when they follow Lucifer, लेकिन जब उन लोग लूसीफर का अनुसरण करते हैं, they do it because influence comes from Lucifer. उन लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जो प्रभाव है वो लूसीफर की ओर से आता है। So many children are hurt because fathers follow Lucifer. बहुत से लोगों को ठेस पहुंचे, बहुत सारे बच्चों को ठेस पहुंची है क्योंकि उन लोग जो है लूसीफर का अनुसरण करते हैं। But thank God, because you're saved, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि आपने उद्धार पाया है। God brings you in a beautiful scenario, in a beautiful atmosphere. परमेश्वर ने एक अच्छा मौसम में या फिर उसमें आपको रखा है। The Lord becomes your father, और परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। and that's one father who can never let you down. और वो एक ही ऐसा पिता जो आपको कभी भी नीचे नहीं गिराएंगे। And so, my dear brothers, I want to encourage you today to be a better father than yesterday. जितने सारे भाई हैं, मैं आपको आज उत्साह करूंगा कि आप कल से बेहतर आज एक अच्छा पिता बने। And remember that you are appreciated. और आपको आज जानना है कि आपको आपका तारीफ किया गया है।
I want you to know today I didn't spend time in hitting the hammer on your head. और मैं चाहूँगा कि आप जाने कि मैंने आज हथौड़ी को लेकर के आपके सिरों में बार बार नहीं मारे है। I showed you how important and precious you are and what a great gift you are to your family. लेकिन मैंने आज आपको दिखाया कि आप कितना महत्वपूर्ण हैं और आप कितना ज़रूरी है आपके परिवार में, और ये अच्छा तोहफा है आपके परिवार के लिए। And remember whatever your children said, और आपको याद रखना है जो कुछ आपके बच्चों ने आज कहा है, you have to strive to become more like Christ और आपको कोशिश करना है ताकि आप और भी यीशु के जैसा बनते जाएं, and put a godly example for your sons and daughters. और अपने बच्चों के लिए आपको एक अच्छा उदाहरण को बना के रखना है। And so put God first in your life. तो अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देना। Don't let Christ be a substitution for you. ऐसा ना कि यीशु जो है कुछ कोई और जगह ले ले यीशु का। Praying with your children, और बच्चों के साथ प्रार्थना करना, playing with your children, बच्चों के साथ खेलना, going to church with your children regularly, और लगातार बच्चों के साथ कलीसिया को जाना, respecting their mother, उन लोग की माँओं को सम्मान देना, loving their mother, उन लोग के माँओं को प्यार करना, will build more respect in their hearts for you. और आपके लिए उन लोग के हृदय में और भी सम्मान जागेंगे आपकी ओर। If you become bitter towards your wife, अगर आप अपने बीवी के प्रति अगर कड़वा हो जाएंगे, the children are watching तो बच्चे लोग देख रहे हैं, and bitterness will get into their hearts और उन too. लोग के हृदय में भी जो कड़वापन है वो आ जाएंगे। So be intentional in loving your wife. तो आप उद्देश्यजनक अपने बीवियों से प्यार करें, Be intentional in speaking kind words to your wife. और अपने उद्देश्यजनक से आप क्या करें, अपने बीवियों से अच्छे शब्दों से बात करें। Intentionally love your children. उद्देश्यजनक से आप अपने बच्चों से प्यार करें, Intentionally impact their life. और उद्देश्यजनक से आप उन लोग के जीवन में प्रभाव को लाइए, Pray with them. उन लोग से प्रार्थना करें, Spend time with उन them. लोग के साथ समय को बिताइए, Go out with उन them. लोग के साथ बाहर जा सकते हैं, Enjoy life together with them. और उन लोग के साथ जीवन को अच्छा से जी सकते हैं। Because the greatest group that you can ever have on earth is a family. क्योंकि सबसे अच्छा जो ग्रुप आप इस संसार में पा सकते हैं वो आपका परिवार है, And they are the most precious thing that you can ever have. और उन लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास है। And if you are a single man, अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, I want to encourage you to pray for a godly woman in your life. मैं आपसे प्रार्थना करूंगा ताकि आप ईश्वरीय एक स्त्री के लिए आप प्रार्थना करें, And when you pray, God will believe that God will bring that woman to you. और जब आप प्रार्थना करेंगे ऐसा विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इस स्त्री को आपके जीवन में जरूर से लेके And आएंगे, pray that when you marry, that you will represent God on earth for your wife. और जब शादी करेंगे आप इस संसार में ताकि आप अपने आप को प्रस्तुत करें अपने बीवी के प्रति, And have a desire to have children. और एक इच्छा को रखें कि आपके पास बच्चे भी हो, Because that is God's desire for you. क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा आपके लिए, To replenish, to multiply and be fruitful on earth. ताकि आप इस संसार में ताकि आप रिप्लेनिश करें और फलवान बने। Do you know one of the greatest group in the world that disobey God is the Christians? क्या आप जानते हैं एक ऐसा ग्रुप जो है जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है? Look at the Muslims. They just have children and children and children, and within few years they became one of the largest religion in the world. और जो मुसलमान हैं उन लोगों के पास बच्चे के बाद बच्चे आते रहते हैं, और आज देखते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट जो आज धर्म में है उन लोग हैं आज के समय में। And look at Christianity, what's happening. लेकिन मसीहत को देखो आज क्या हो गया। Once upon a time, Christians had many children. और एक ऐसा समय था जहाँ पे मसीहों को बहुत सारे बच्चे होते थे। But now Christians have become more worldly, and we think worldly. We think we don't have to get married, and if you have married one children, हम दो हमारे एक। और आज उन लोग कहने थे कि हम अगर शादी भी नहीं करते, बहुत से लोग, और जो शादी भी करते हैं उन लोग एक ही बच्चे को उन लोग पैदा करते हैं। Now I want to encourage you, think about obeying God's word. और मैं चाहूँगा कि आप सोचें इसके ऊपर, परमेश्वर का वचनों का पालन करने के विषय में। And may the Lord just give you good health and strength and power, and you realize that the most precious thing that you have on earth after your salvation is your family. और मैं चाहूँगा कि आप आज समझें कि इस संसार में उद्धार पाने का सबसे और अच्छा उत्तम चीज ये है कि आपका परिवार। Never give up on your family. परिवार को आप कभी भी ना त्यागे, Always stand up for your family. हमेशा परिवार के साथ बने रहें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word, O Lord. आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the fathers. पिताओं के लिए आपको धन्यवाद Such पिता। a great blessing they are to all of us. और हमारे लिए उन लोग एक आशीष के कारण है। I pray that they will understand that they are appreciated for everything. मैं चाहूँगा कि उन लोग समझे कि आज उन लोग का तारीफ किया गया पिता। Lord, anyone that has a hurt in the past,
और पिता परमेश्वर अगर इसमें से कोई भी अगर पहले ठेस पहुंचे I pray that they will see joy and peace in you, O God, ताकि उन लोग आप में आशा शांति को पा सके प्रभु, because you are a good Father. क्योंकि आप एक अच्छा परमेश्वर You हैं, are a wonderful Father, आप अच्छा एक अद्भुत परमेश्वर loving हैं, and kind और Father, आप दयालु हैं पिता a परमेश्वर, Father that in whom we can always depend upon, ऐसा पिता जो हम हमेशा जिसके ऊपर भरोसा को रख सकते हैं, and help us all to become like you, O और Lord. आप हमें मदद करता कि हम आपके जैसा बन सके We give पिता। you all the glory and honor. हम सारे दर महिमा आपको देते हैं, We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं, In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से हम And all God's people said, आमेन। a big clap offering unto the Lord.